اب ہم ناظرین کو دکھائیں گے لائیو سیشن۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت باقاعدہ طور پر اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ یہ ووٹ دینے والے حاضر اراکین کی اکثریت ہی درکار ہوگی۔ ووٹنگ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلے اختیار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انتخابات کی کارروائی کے آغاز کا اعلان کروں، میں سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں دوبارہ ایوان کو آگاہ کریں۔ جی لک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب بابت 1997 کے گوشوارہ دوم کے مطابق ووٹ ریکارڈ کروانے کی کارروائی کچھ اس طرح ہوگی۔ جو ہی جناب ڈپٹی اسپیکر کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ جو معزز اراکین ایوان میں موجود نہیں ہیں وہ مین چیمبر میں تشریف لا سکیں۔ جو ہی گھنٹی بجنا بند ہوگی تو لابیوں کے تمام دروازے لاک کر دیے جائیں گے، اور جب تک ووٹنگ مکمل نہیں ہو جاتی کسی معزز رکن یا عملے کے کسی شخص کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر جناب ڈپٹی اسپیکر اعلان کریں گے کہ جو معزز اراکین جناب چودھری پرویز الہی کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ قطار میں جناب ڈپٹی اسپیکر کے بائیں جانب والی نوز لابی کے دروازے سے گزریں، اور جو معزز اراکین جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ قطار میں جناب ڈپٹی اسپیکر کے دائیں جانب والی آئی لابی کے دروازے سے گزریں۔ دونوں دروازوں پر کھڑے شمار کنندہ ان کے ووٹ کا اندراج کریں گے۔ ووٹ کا اندراج کروانے کے لیے ہر معزز رکن اپنا ڈویژن نمبر پکاریں گے۔ ڈویژن نمبر کے سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ جنرل نشستوں سے منتخب ہونے والے اراکین کا نمبر پی پی نمبر ہی ان کا ڈویژن نمبر ہوگا، جبکہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی اراکین کا ڈبلیو یا این ڈبلیو نمبر جو انہیں سیکریٹریٹ اعضاء کی طرف سے پہلے ہی الاٹ کیا جا چکا ہے، ان کا ڈویژن نمبر ہوگا۔ شمار کنندہ کے ڈیسک کے نزدیک پہنچنے پر ہر رکن اپنی باری پر اپنا ڈویژن نمبر پکارے گا، اور شمار کنندہ ڈویژن لسٹ میں ان کے نام پر نشان لگانے سے پہلے ہر معزز ممبر کا نام پکارے گا۔ ہر معزز ممبر اس امر کا اطمینان کرنے کے بعد کہ ان کے ووٹ کا اندراج ہو چکا ہے لابی میں چلے جائیں گے، اور دوبارہ گھنٹیاں بجانے تک وہ دوبارہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے۔ دونوں ووٹوں کا اندراج مکمل ہونے کے بعد ڈویژن سے لسٹ ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ پھر 2 منٹ تک دوبارہ گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ معزز ممبران لابی سے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ گھنٹی بند ہونے پر جناب ڈپٹی اسپیکر ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان فرمائیں گے۔ شکریہ۔ جی اب ہم انتخاب کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں۔ ٹھیک ہے، نہیں گھنٹیاں تو بجیں گی، 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجیں گی، وہ سب شروع ہوگی، تب ٹھیک کر رہے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجیں گی۔ آواز سنیے، گھنٹی شروع نہیں۔ ناظر آپ دیکھ رہے ہیں اجلاس کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے تمام ارکان اسمبلی کو رولز اینڈ ریگولیشن سمجھائے گئے اور بتایا گیا کہ اگر پرویز الہی کو کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ کس سائٹ پر سے گزرے گا، اور دوسری جانب حمزہ شہباز کو کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ آئی لابی کی طرف سے گزرے گا، اور اس کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اپنا ڈویژن نمبر جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد ووٹ کاسٹ کیا جائے گا۔ اس وقت اسمبلی کے اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ رولنگ دی گئی ہے کہ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں، اور جتنے بھی لابی میں یا پھر کہیں اور بھی جو موجود ہیں ارکان اسمبلی وہ تمام اسمبلی کے فلور پر آ جائیں، جس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ووٹنگ کا یعنی کہ پولنگ کا باقاعدہ طور پر جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 5 منٹ کے لیے یہاں پر گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں۔ تمام ارکان اسمبلی جو باہر لابی میں موجود ہیں ایک ایک کر کے اسمبلی میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔
इससे कबल रूल्स बताए गए थे कि किस तरीके से अपना वोट कास्ट करना है और किस तरफ जाना है, यानी कि 2 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। एक हमजा शहबाज के लिए, अगर कोई वोट करना चाहता है तो वो उस दरवाजे से गुजरेगा, जबकि दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि एक और दरवाजा जिसके लिए वोट कास्ट करने के लिए परवेज इलाही के जो हामी हैं वो वहां से गुजरकर अपना वोट कास्ट करेंगे और वोट कास्ट करने से पहले डिवीजन नंबर पुकारेंगे और उसके बाद वोट कास्ट किया जाएगा। इस वक्त घंटियां बजाए जाने का सिलसिला जारी है और कुछ देर के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे मजीद क्या मनाजिर वो वहां पर देख रहे हैं। अतीक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली में घंटियां बजाई जा रही हैं। डिप्टी स्पीकर की जानिब से 5 मिनट का वक्त दिया गया है और 5 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब की कार्रवाई का अमल शुरू हो जाएगा और 5 मिनट के बाद ही तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज होगा। 2 जो है वो बूथ बनाए जाएंगे जिसमें दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मेम्बरान जो है वो वोटिंग करवाएंगे और अगर जिसमें सबसे ज्यादा वोट कास्ट होंगे या जिसमें सबसे ज्यादा वोट की हमायत का ऐलान करेंगे तो वो वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। लेकिन से अहम बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि अभी पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से 2 इतराज़ात सामने आए हैं। नून लीग की जानिब से पहला इतराज़ ज़ैन कुरैशी के ऊपर उठाया गया है कि उनका कहना है कि ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, जबकि शबीर गुज्जर का इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है इसलिए ये वोट भी कास्ट नहीं कर सकते, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने दोनों इतराज़ात जो है मुस्तरद कर दिए हैं और उनका ये कहना है कि दोनों और इतराज़ात के बाद वक्फा अज़ान हुआ जिस पर तमाम अरकान खामोश हो गए और खामोशी के बाद जब अज़ान खत्म हुई तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जानिब से 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने की अनाउंसमेंट जो है वो की गई और जिसमें अभी तक घंटियां बजाई जा रही हैं और 5 मिनट का वक्त मुकम्मल होने के बाद घंटियां बंद होंगी और तमाम अरकान जो बाहर होंगे उनको बाकायदा तौर पर अंदर बैठाकर कार्रवाई का आगाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो कार्रवाई जो अभी शुरू होगी। जी अच्छा अतीक मलिक, आपने बताया कि नून लीग की जानिब से 2 लोगों पर एतराज उठाया गया, एक ज़ैन कुरैशी दूसरे शब्बीर गुज्जर। ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफा नहीं दिया ये कहना था नून लीग का और दूसरे अरकान असेंबली रुकने असेंबली जो बशीर गुज्जर है उन पर क्या एतराज उठाया गया? जी उन पर क्योंकि इलेक्शन से कबल लड़ाई झगड़े का मामला था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया था और उनका केस जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और PP 167 से जो वो कामयाब हुए हैं और लेकिन अब नून लीग की जानिब से उन पर इलेक्शन कमीशन में केस चलने के हवाले से इतराज उठाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से दोनों इतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं और दोनों कैंडिडेट जो MP हैं उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई है। इस तरह बाकायदा तौर पर वोटिंग का आगाज जो है वो अब से 5 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। जी ठीक, अतीक मलिक बता रहे हैं शबीर गुज्जर के हवाले से कि वहां पर उनका जो केस है वो अभी इलेक्शन कमीशन में लिहाजा, लेकिन दोनों की जानिब से अगर डिप्टी स्पीकर ने कह दिया है कि ये वोट कास्ट कर सकते हैं, एतराज को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, तो अब ये बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर दरवाजे बंद करने के बाद, घंटियां बजने के बाद अब बाकायदा तौर पर वोटिंग का पोलिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। 2 लॉबी में 2 दरवाजे बताए गए हैं, जो परवेज इलाही के हामी हैं वो एक साइड से जाएंगे जबकि दूसरी साइड से हमजा शहबाज के जो है वो गुजरेंगे और उसके बाद अपना एक एक करके वोट कास्ट करते रहेंगे। 5 मिनट का वक्त दिया गया जिसके बाद घंटियां बजाने के बाद इस वक्त असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे अरकान असेंबली हैं जो कि लॉबी में मौजूद थे और वो एक एक करके अब वापस असेंबली में आ रहे हैं। अतीक आपकी तरफ आएंगे, यही 2 एतराजात उठाए गए और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा तमाम अरकान मौजूद हैं अब जब वोटिंग शुरू होने वाली है? तमाम अरकान पंजाब असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं। घंटियां बजाने का जो अमल था वो बंद कर दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर वोटिंग का अमल जो है वो शुरू करने की अनाउंसमेंट जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से कर दी गई है और ईवान के अंदर मौजूद अरकान असम्बली तादाद के मुताबिक वोटिंग जो है वो कराई जाएगी। डिप्टी स्पीकर का ऐसा कहना है और जिस उम्मीदवार ने ज्यादा वोट दिए वो वज़ीर आला करार दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है और अभी जो है वो बाकायदा तौर पर वोटिंग का अमल जो है वो शुरू कराया जाएगा और तमाम अरकान को बाकायदा तौर पर हदायत भी जारी की जाएगी। जो जिस पार्टी की जानिब हमायत का ऐलान करेगा वो उस लेफ्ट या राइट टर्न करेगा, जिसमें जितने अरकान दोनों साइड पर मौजूद होंगे उनकी काउंटिंग कराई जाएगी और जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाए जाएंगे उसको आज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर दिया जाएगा। जी अच्छा अतीक मलिक, आपने 2 एतराजात के हवाले से बताया था, मजीद तो कोई एतराज नहीं उठाया गया? नून लीग के भी तमाम अरकान मौजूद हैं, उनके इत्तेहादियों के भी और PTI और काफ लीग के भी तमाम अरकान मौजूद हैं, तो किसी तरफ से कोई भी एतराज नहीं उठाया गया, ऐसा ही है? बिल्कुल, 2 अरकान के अलावा उन्होंने खलील साहिब सिंधु जो मुस्तबिक नून है उनकी जानिब से ये भी इतराज उठाया गया है कि ईवान के अंदर 2 अजनबी
शख्स जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा। और दोनों अरकान जो है वो पीटीआई के हैं। उन्होंने ये कहा है कि दोनों अरकान को जो है वो वहां से बाहर निकाला जाए, और इस पर बातचीत जो है वो भी जारी है, लेकिन अभी तक दोनों अजनबी अफराद को जो है बाहर नहीं निकाला गया। मजीद जो है वो इस पर कार्रवाई जो है वो जारी है। अच्छा अतीक मलिक, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पुलिस पंजाब असेंबली के अंदर एंटर नहीं होगी, जो वहां की सिक्योरिटी है यानी कि पंजाब असेंबली की जो सिक्योरिटी है सिर्फ वो वहां पर मौजूद होगी। अब आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सिक्योरिटी मौजूद है? क्योंकि आप अपडेट कर रहे हैं कि 2 और मेहमान हैं ऐसे जो कि मौजूद हैं और उनका ताल्लुक पीटीआई से है। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की नफरी जो है वो पहुंच चुकी है। 200 से ज्यादा एंटी राइट फोर्स के एहलकार दस्ता बनाकर पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जबकि इनके साथ ही पंजाब असेंबली में खवातीन एहलकार भी तलब कर ली गई है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। हमारी जो है पुलिस एहलकारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं, जिसके बाद हम पंजाब असेंबली में दाखिल हुए हैं। जबकि सुबह से हम पंजाब असेंबली के सराउंडिंग में मौजूद थे। जैसे ही हमें हिदायत जो है वो पहुंची गई, हम फौरन जो है पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन इससे फर्दर हमें कोई डायरेक्शन जो है वो जारी नहीं की गई है। अलबत्ता हम पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। तमाम जो एंटी राइट फोर्स के एहलकार हैं उन्होंने हेलमेट और जो दस्ते हैं वो पकड़ रखे हैं और हाथों में डंडे भी उठा रखे हैं। यूं लग रहा है कि जैसे किसी इक़बाल के इंतजार में है। और जबकि इसके साथ साथ पंजाब असेंबली के अंदर भी देखा गया है कि डिप्टी स्पीकर के पीछे जो पुलिस एहलकार है वो दस्ता बनाए खड़े थे, और सार्जेंट एट आर्म का भी उनको जो एक ओहदा होता है वो उनको दे दिया गया है डिप्टी स्पीकर की जानिब से। और बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि हमें पुलिस जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से डायरेक्शन आई है, जबकि पुलिस ऑफिसर उनका ये कहना है कि हमें बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि आप पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और इसी सूरत में हम पंजाब असेंबली के अंदर आए हैं। जी अच्छा अतीक मलिक, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं। परवेज इलाही और इससे कबल जब हमने देखा पीटीआई के अरकान मौजूद थे, तमाम लोगों में बहुत सारे लोगों ने मीडिया से भी बातचीत की जो पीटीआई के रहनुमा हैं और काफी ज्यादा मुतमईन और कॉन्फिडेंट नजर आए। अच्छा यही सूरत हाल दूसरी तरफ भी थी जहां पे नंबर गेम पूरा भी नहीं है, यानी कि नून लीग वाले भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। तो अभी दोनों उम्मीदवार, खासतौर पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही की बात करें, अगर इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, अभी तक सूरत हाल ये है कि जितने भी अरकान पंजाब असेंबली में मौजूद हैं उनके जो लीडर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। परवेज इलाही भी काफी पुरुमीद हैं, जबकि दूसरी जानब हमजा शहबाज भी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लगता यूं है कि जैसे दोनों की जानिब से अपनी पूरी तैयारी की गई है, दोनों की जानिब से सियासी हरबे जो है वो खूब इस्तेमाल किए गए हैं, सियासी जोड़ तोड़ जो है वो भी जारी रही है। अब से कुछ देर कबल आसिफ जरदारी भी अशफाक शुजात के घर गए और उनकी जानिब से काफी ऑफर जो है वो उनको की गई हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि अभी कहना कबल वक्त होगा कि कौन से उम्मीदवार किसके हक में जाएंगे, चूंकि बातें इतलात काफी सुनने को मिल रही थी, बहुत सी खबरें जो बात कर रही थी कि काफ लीग के जो अरकान हैं उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो अपनी जो वोटिंग है और अपनी जो वफादारी है वो चेंज करें, लेकिन अभी तक ये सारी चहमगोइयां हैं, कुछ भी कहना कबल बिल्कुल, ये सारी चहमगोइयां, इस तरह की अफवाहें, मुख्तलिफ इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अब किस हद तक इसमें सदाकत है ये तो कुछ देर के बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा इस वोटिंग के बाद उस टाइम पता चलेगा। अतीक मलिक हमें अपडेट करें पंजाब असेंबली से।